وہ صرف 15 سال کا تھا جب اس کو دل کی ایک ایسی خطرناک بیماری کا سامنا تھا کہ بغیر سرجری کروائے وہ اپنا کریئر جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ریسٹ کے دوران بھی عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتی اور اس کی سانسیں پھولی رہتی۔ اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ بیماری اس کے کریئر کو 15 سال کی عمر میں ہی ختم کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے کریئر کو بچانے کے لیے اس سرجری کی ٹھان لی اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ وہ جیسے ہی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا، آتے ہی اس نے فٹ بال کو ایک زبردست ہٹ لگائی اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ یاد رکھنا، میں دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر بنوں گا اور یہ دنیا مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی۔ لیکن اس کے ساتھی کھلاڑیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور ہنس دیا، لیکن وہ عظیم کھلاڑی بننے کے مشن پر نکل چکا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ جب بھی میدان میں جاتا تو ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی، کرسٹیانو رونالڈو۔ عالمی شہرت یافتہ پرتگالی سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کھیلوں کی دنیا سے نکل کر فلمی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہالی ووڈ کی مقبول ایکشن فرنچائز فاسٹ اینڈ فیوریس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ رونالڈو کو فلم فاسٹ ایکس پارٹ 2 میں کاسٹ کر لیا گیا ہے، جو اس طویل سیریز کی آخری فلم ہوگی۔ رونالڈو جلد ہی 1000 گولز کا ہدف بھی اچیو کرنے والے ہیں۔ یہ سنگ میل عبور کر کے وہ فٹ بال کی تاریخ میں واحد فٹ بالر بن جائیں گے جس کے پاس یہ اعزاز ہوگا۔ رونالڈو کی یہ فلم 2027 میں ریلیز ہونے کی توقع ہے۔ فاسٹ اینڈ فیوریس سیریز اپنے گزشتہ ریکارڈز توڑنے کے لیے مشہور ہے اور اب ایک عالمی فٹ بال سٹار کی آمد نے فلم کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو 5 فروری 1985 میں پرتگال کے جنوب مغربی شہر فنچل میڈیرا میں پیدا ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 1992 میں کیا۔ وہ شروع میں لسبن سپورٹنگ ٹیم کے پہلے اسکواڈ کا حصہ بھی نہیں بن سکے، لیکن اس کو یقین تھا کہ وہ ضرور دنیا کا بہترین فٹ بالر بنے گا۔ میڈیرا کی سڑکوں پر کھیلنے سے پہلے ہی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا، لیکن ان کے پاس گول پوسٹ، نیٹ اور کسی بھی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ وہ 2 اینٹوں کو سڑک کنارے کھڑا کرتے اور اس کو گول پوسٹ تصور کرتے، اور جب بھی وہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ان کو اپنا کھیل روکنا پڑ جاتا۔ کرسٹیانو رونالڈو کے والد ایک پرتگالی فٹ بال کلب کے کٹ مین تھے۔ وہ وہیں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ وہ یوتھ ٹیم میں کھیلنے کے لیے ہمیشہ کرسٹیانو کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رونالڈو نے یہ سوچا کہ اسے اس کلب کی طرف سے کھیلنا ہوگا تاکہ اس کا باپ فخر محسوس کرے، اور اسی وجہ سے کرسٹیانو رونالڈو نے 1992 سے 1995 تک اسی کلب کی طرف سے کھیلا۔ فٹ بال کی ہسٹری میں کئی کھلاڑی آئے اور چلے گئے، لیکن رونالڈو ایک ایسا نام ہے جس نے وقت کے پہیے کو اپنی محنت سے روک رکھا ہے۔ 40 سال سے زائد عمر میں بھی جوانی کا جادو جگانے والا یہ کھلاڑی کوئی جادوگر نہیں بلکہ ڈسپلن کی زندہ مثال ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو وہ کھلاڑی ہے جس نے ثابت کیا کہ عمر محض ایک ہندسہ ہے۔ اگر آپ کا عزم
फौलादी हो तो। रोनाल्डो की फिटनेस पर कई साइंसी स्टडीज हैरान कुन हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जिस्म में बॉडी फैट की मिकदार सिर्फ 7 से 10% के दरमियान रहती है, जो कि आम एथलीट से भी कम है। उनकी टांगों की ताकत का ये आलम है कि वो एक छलांग में 78 सेंटीमीटर बुलंद उठ सकते हैं, जो कि एक एवरेज NBA बास्केटबॉल खिलाड़ी से कहीं ज़्यादा है। स्टडीज़ बताती हैं कि रोनाल्डो का बायोलॉजिकल जिस्म उनकी असल उम्र से 10 साल छोटा है। रोनाल्डो की कामयाबी का राज उनका पागलपन की हद तक सख्त ट्रेनिंग करना है। वो रूटीन जो किसी दूसरे फुटबॉलर की नहीं, वो दिन में 3 से 4 घंटे जिम और फील्ड में गुजारते हैं। लेकिन असल कमाल ट्रेनिंग के बाद का है। वो रिकवरी के लिए क्रायोथेरेपी का सहारा लेते हैं, जहां मनफी 160 डिग्री दर्जा हरारत में जिस्म को ताज़ा दम रखा जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिटनेस का एक और बड़ा राज है उनका आइस बाथ या बर्फानी गुसल। हर मैच और सख्त ट्रेनिंग के बाद वो कई मिनट तक हड्डियों को जमा देने वाले बर्फीले पानी में गुजारते हैं। रोनाल्डो ने अपने घर में ख़ास तौर पर $50,000 की लागत से क्रायोथेरेपी चैम्बर लगवा रखा है, जहां वो 160 से 200 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत में जिस्म की रिकवरी करते हैं, ताकि अगले ही दिन वो दोबारा एक मशीन की तरह काम करने के लिए तैयार हों। रोनाल्डो की खुराक भी किसी मशीन के ईंधन की तरह नपी तुली है। वो दिन में 6 मरतबा खाना खाते हैं, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों या पोर्शंस में। उनकी डाइट में प्रोटीन, हाई लेवल ग्रेन्स और ताज़ा फल शामिल है। वो चीनी, मीठे मशरूबात और अल्कोहल से मुकम्मल परहेज़ करते हैं। यूरो कप की उनकी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन भूल सकता है, जब उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हटाकर पानी पीने का मशवरा दिया था। वो रोज़ाना 8 घंटे की नींद लेते हैं और दिन में कई बार छोटे छोटे नैप्स भी लेते हैं, ताकि मेटाबॉलिज्म बेहतरीन रहे। सिर्फ जिस्मानी फिटनेस ही रोनाल्डो के लिए काफ़ी नहीं, अपनी टेक्निक्स पर घंटों काम करते हैं। उनकी नकल बॉल फ्री किक टेक्निक फिजिक्स के माहिरीन को भी हैरान कर देती है कि वो किस तरह से हवा में उड़ते हुए किक लगाता है और किस एंगल से बॉल गोल पोस्ट में लैंड करता है। ये टेक्निक किसी भी खिलाड़ी के पास मौजूद नहीं है। रोनाल्डो ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिर में निकलते हैं। उनके हेडर्स मारने की टाइमिंग इतनी दुरुस्त है कि गेंद और सर का मिलाप किसी लेज़र गाइडेड मिसाइल जैसा मालूम होता है। फुटबॉल की दुनिया के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना की शादी कब और कैसे होगी, ये भी सोशल मीडिया पर पूछे जाने वाला एक बड़ा सवाल है। स्पेनी मॉडल जॉर्जिना ने कुछ अरसा पहले ही अपनी एक अंगूठी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें 30 कैरेट्स के हीरे लगे हुए थे। इस खुशखबरी के बाद रोनाल्डो के फैंस ने शोर मचा दिया कि ये शादी का इशारा है, और इसी वजह से इन दोनों की शादी से मुताल्लिक क़यास आराइयाँ होने लगीं। रोनाल्डो की शादी रियाद या दुबई जैसे हाई प्रोफाइल मकामात पर हो सकती है, लेकिन सऊदी अरब के अल नसर से एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद मुतवक्के है। इसके अलावा उनकी जज्बाती वाबस्तगी के बायस स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में भी शादी होने के चांसेस हैं। यही वो शहर है जहां दोनों 2016 में
पहली बार मिले थे और ये जॉर्जिना का जाए पैदाइश भी है। इसके अलावा रोनाल्डो के आबाई मुल्क पुर्तगाल में शादी के फंक्शंस रखने की तैयारी भी हो रही है। रोनाल्डो और जॉर्जिना की मोहब्बत की कहानी बर्रे आज़मों तक फैली है। 2016 में मैड्रिड में एक मारूफ ब्रांड के स्टोर में मुलाकात के बाद दोनों ने ताल्लुकात का आगाज़ किया था। इस लव स्टोरी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जिनमें से सबसे दिलचस्प हकीकत यह है कि दोनों के दरमियान एक ब्रेकअप एग्रीमेंट भी तय हो चुका है, जिसके मुताबिक वो अलग हो जाएं तो जॉर्जिना को जिंदगी भर माहाना 1,14,000 अमेरिकी डॉलर से ज़ायद पेंशन और रोनाल्डो की कीमती जायदाद मिला करेगी। मैदान के बाहर रोनाल्डो एक नरम दिल इंसान है। वो दुनिया के उन चंद खिलाड़ियों में से है जिन्होंने अपने जिस्म पर कोई टैटू नहीं बनवाया ताकि वो बाकायदगी से खून अतिया कर सकें। वो बहुत ब्लड डोनेशन करता है। उन्होंने अपने गोल्डन बूट जैसे कीमती अवार्ड्स नीलाम करके लाखों डॉलर्स खैराती इदारों को दिए। कैंसर के मरीज बच्चों का इलाज हो या जंग ज़दा बच्चों का, उन्होंने अपना 2011 का गोल्डन बूट नीलाम किया, जिससे हासिल होने वाली 1.5 यूरो की रकम गजा में स्कूलों की तामीर के लिए अतिया की। 2013 में अपना बैलन डोर अवार्ड नीलाम करके $6 लाख मेक अ विश फाउंडेशन को दिए। उन्होंने नेपाल के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 5 मिलियन पाउंड्स की खतीर रकम भी अतिया की। वो सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ के सफ़ीर के तौर पर करोड़ों डॉलर्स जमा कर चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर मैकलेग ने कहा था कि उन्होंने रोनाल्डो के साथ बहुत काम किया और उसके अलावा भी बहुत सारे अजीम लोगों को देखा। उनके ख्याल में क्रिस्टियानो, लियोनार्डो डा विंची, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों की लीग में शामिल हैं। अगर इन सब में सब बासलाहियत थे तो रोनाल्डो भी एक बासलाहियत शख्स है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जिम में पहले ही सेशन में उन्होंने कहा था, मैं दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा। ये हैरत अंगेज़ बयान था। उसमें कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाद उसे ये कहता सुना गया कि मैं दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी हूँ, और दुनिया ने इस हकीकत को तस्लीम किया। वैसे तो रोनाल्डो हमेशा ही से सबसे ज़्यादा कमाने वाले फुटबॉल प्लेयर्स में शामिल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के क्लब अल नसर में उनका मौजूदा दौर भी उनको करोड़पति खिलाड़ियों की फहरिस्त में ऊपर ले गया है। सऊदी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में सऊदी प्रो लीग में जाने के बाद वो तकरीबन $200 मिलियन सालाना तनख्वाह के साथ खेल की तारीख में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी बन गए। और जून 2025 में 40 साला नौजवान ने सऊदी तंजीम के साथ एक नए 2 साला मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसकी मालियत मुबैना तौर पर टैक्स फ्री कमाई में $400 मिलियन से ज़्यादा है। इस मुआहदे ने रोनाल्डो की मजमूई मालियत को $1.4 बिलियन तक बढ़ा दिया है। रोनाल्डो की फुटबॉल से कमाई ही उसकी आमदनी का वाहिद ज़रिया नहीं, बल्कि उसकी मजमूई मालियत आसमान को छू रही है। 5 बार के बैलन डोर जीतने वाले ने तकरीबन $18 मिलियन सालाना के 1 दहाई के तवील नाइकी मुआहदे पर दस्तखत किए। अरमानी और कैस्ट्रॉल जैसे ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप्स की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उनकी मजमूई मालियत में $175 मिलियन से ज़ायद का इजाफा हुआ। रोनाल्डो ने टेलीविज़न नेटवर्क्स, होटल्स, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स,
पैडल टेनिस रैकेट और इसके अलावा कई सनतों में सरमायाकारी करके एक कारोबारी सल्तनत बनाई। रोनाल्डो ने अपनी कंपनी CR7SA के ज़रिए उन तंजीमों की तादाद को 2 गुना कर दिया जिनमें वो अक्सरियती शेयर्स रखते थे। उनके कुल 21 कंपनीज में शेयर्स हैं। रोनाल्डो दुनिया के किसी भी स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा चाहे जाने वाला आदमी है। अब तक सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला शख्स है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 1 बिलियन यानी 1 अरब से ज़ायद हो चुकी है। रोनाल्डो ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने ख्वाब टारगेट्स की शक्ल में सेट किए, जैसे 2026 के वर्ल्ड कप में खेलकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतने का हदफ अब के टारगेट में शामिल है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं कौमी टीम के लिए एक और टाइटल जीतना चाहता हूं। वर्ल्ड कप लाने और 1000 गोल्स मुकम्मल करने के अलावा उसका एक हदफ 250 गेम्स में कौमी टीम की किट पहनकर ग्राउंड में उतरना भी है। वो अब तक 225 से ज़ायद मैचों में पुर्तगाल की शर्ट पहनकर मैदान में उतरा, लेकिन उसकी ज़िद है कि वो अपना ये हदफ भी पूरा करेगा। इसके अलावा उसके सेटल्ड गोल और विश लिस्ट में अपने बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के साथ खेलने का ख्वाब भी शामिल है। TNS द नवीद शो में आज आपने एक मिशन की कहानी सुनी। ये कहानी थी एक डिसिप्लिन की। ये जीत कर हारने और हार कर जीतने की कहानी थी। हम आपके लिए इसी तरह के बड़े और अजीम किरदारों की कहानियां लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।